This is my first video in this series. In this series, I'm going to discuss about mathematics of class 8 and I'm going to follow NCERT curriculum for the same. I hope you guys like it and learn along with me in this video. Okay, so the first chapter that we're going to discuss is rational numbers. We have learned about whole numbers, integers, natural numbers in the previous classes. So in this section, we are going to start with discussing more about rational numbers, about its properties, and let's see how it goes. Okay. Okay. So आप लोगों ने we have already discussed about whole numbers and integers in the previous classes, right? So now let's get started with some properties of the rational numbers and compare them with the whole numbers and integers, right? Okay. So the first one that we're going to discuss is closure. Okay. Now the question comes is कि what is closure? अब closure हम किसके कहते हैं? ठीक है. If you don't have any, if you're not confident about integers and whole numbers, no worries. I'm going to still discuss about these in short over here, so you can get a revision of those as well as the properties. Okay. So closure is what we call closure is basically that जो भी हमने यहाँ पे operations लिखे हैं, so जब हम ये operations in numbers पे apply करते हैं, so उसका output जो है वो भी हमें same number type का मिलता है नहीं मिलता. So इनपुट जो होगा हमारा वो होगा होल नंबर. ठीक है. हमने उस पर कोई भी हमने फंक्शन हमने लगाया, तो ऐड करा या तो सब्ट्रैक्ट करा हमने या तो मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करा. ठीक है. और जो हमें इन ऑपरेशंस के बाद जो आउटपुट मिलेगा, अगर हमें वो होल नंबर मिलेगा तो हम बोलेंगे दैट इज क्लोजर अंडर एडिशन. अंडरस्टूड? सो if we have, let's say, let's first discuss some examples of whole numbers, right? So you have already discussed in these previous classes, so I'll just go through very briskly. So whole numbers हम कैसे कहते हैं? क्या ये whole numbers है? Yes. These are not whole numbers. Whole numbers are basically natural numbers plus 0. So we get from 0, 1, 2, 3 and so on. Agreed? Now integers are basically whole numbers plus negation of the negative of the side of the number line. So अगर हम same example लें यहाँ पे, I hope this is visible. -10, 0, 10.5. This is an integer, this is an integer, but this is not an integer. We'll shortly see what this number is, but this is not an integer. So we can say -7, -4, -3, -2, -1, 0, 3 and so on. So this is the integers. These are the integers. Now we come to rational numbers. What are rational numbers? Okay, so rational numbers are basically any numbers that can be denoted in the form of p divided by q. Now what would be the necessary condition? कोई भी नंबर अगर हम p divided by q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं तो वो एक rational नंबर है. लेकिन q, there is a condition over here that q cannot be equal to 0. Make sense? But why? If you want to ask yourself why. P divided by Q. जब हम बोलते हैं कि P divided by Q, we say that we are dividing P in Q equal parts. तो अगर मैं बोलूँगा कि 2 divided by 1, तो मैं 2 को एक equal part में divide करूँगा, तो कहते हैं क्या आएगा आउटपुट 2. लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 divided by 0, मतलब जो ऑलरेडी मेरे पास 2 को मुझे 0 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मेरे को 2 को एक तरीके से गायब करना है, सो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अनडिफाइंड, राइट? नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स फॉर रैशनल नंबर्स. लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. सो -10, इज दिस अ रैशनल नंबर? 0, 10.5
let's take some 2 and 3. Let's take these examples, right? So minus 10. Minus 10 is what? We can also write this as minus 10 divided by 1. So yes, this is a rational number. 0 can also be written as 0 divided by 10, or in that sense 0 divided by any number. अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 0. सो 0 भी एक रैशनल नंबर, हाँ रैशनल नंबर है. 10.5. 10.5 का मतलब क्या हुआ कि हमने 21 को 2 इक्वल हार्ट्स में डिवाइड करा तो हमें 10.5 मिला. अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 105 डिवाइडेड बाय 10. 10.5 एक डेसिमल था तो हमने एक 10 डेसिमल प्लेस नीचे आ गया. लेकिन अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? अगर हमें इसको रिड्यूस करना है लीस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वी कैन सी दैट दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? दैट्स करेक्ट, 5. तो हमें आउटपुट मिल गया 21/2. Similarly, we can see that 2 is also a rational number and 3 is also a rational number. Okay. So now question for you guys. Can we say that whole numbers is a subset of integers and integers are a subset of rational numbers? Please leave your answer in the comment section. I'll repeat the question. Are whole numbers a subset of integers and our integers are a subset of rational numbers? So, okay, let me rub this. Basically, सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो हमने एग्जांपल्स, जो हमने पार्ट्स यहाँ होल नंबर्स में रखे हैं, क्या वो इंटीजर्स भी हैं? और अगर वो इंटीजर्स भी हैं, जो हमने इंटीजर्स में लिखे हैं, क्या वो रैशनल नंबर भी है? क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा? क्या हर एक होल नंबर इंटीजर होगा? Think about it and leave your answer in the comment section. Now we are going to discuss addition under closure. So as we discussed, closure is that जो हमने इनपुट दिया है, अगर हमने इनपुट हमारा होल नंबर है, होल नंबर में हमने जो ऑपरेशन करा, एडिशन करा, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है? तो लेट्स अगर हमने 0 + 1 करा तो आंसर क्या आएगा? दैट्स करेक्ट, 1. तो अगर हमने, शायद हमने वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस आल्सो, अगर हमने होल नंबर्स पे कोई भी एडिशन अगर हम करते हैं होल नंबर्स का, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमेशा होल नंबर ही होगा. इफ यू वांट यू कैन आल्सो थिंक इट लाइक कि इफ वी हैव 2 होल नंबर्स, राइट? सो हमारे पास एक होल नंबर है, देयर इज अ होल थिंग विद अस. कंसीडर इट एज अ चॉकलेट. वी हैव 2 चॉकलेट्स, ठीक है? अब I had 3 chocolates more in it. आपके पास 2 चॉकलेट है, मैंने आपको 3 चॉकलेट और दी, ठीक है? तो आपके पास पूरी की पूरी 5 होगी ना. आपने ना उसको कोई बीच में खाया, ना कुछ फेंका, ना कुछ तोड़ा. सो इट्स होल इन इटसेल्फ. सो वी कैन से दैट एडिशन इज क्लोज्ड अंडर फॉर होल नंबर्स. एंड बाय द सेम लॉजिक, सेम थिंकिंग, वी कैन से दैट इंटीजर्स इज आल्सो क्लोज्ड. इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है? बस कि हम नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, बट आप चाहे हम -10 करें तो ये -20 आएगा. ये भी एक इंटीजर ही रहेगा. अगर हम इंटीजर से इंटीजर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर्स, अच्छा सॉरी, वी आर कंसीडरिंग एडिशन अभी. सो -10 प्लस -10 is equal to -20. So this is also an integer. So we can say that integers is also closed under addition. Now comes the question of rational numbers. So this is also very easy and we apply the same logic that we have discussed of for integers. Rational numbers हमने बोला कि p/q में डिनोट करते हैं. तो अगर let's assume कि our first rational number is p/q, and second is a/b. So if I add these two, आंसर क्या होगा? आंसर होगा इन दोनों का LCM, राइट? q into b. This is p into b plus a into q, right? अच्छा, I forgot to mention over here that इधर p and q हमारे क्या हैं?
इंटीजर्स, ठीक है। सो अभी एक्चुअली we'll see in the next section that integers are also closed under multiplication. So we can say that this is an integer, the first part p into b. We can say the second part is integer a into q, and because both of them are integer and integers are also closed under addition, जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो हमारा इंटीजर होगा, और सिमिलरली जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो भी हमारा इंटीजर होगा. Why? Because q into b will also be an integer. We have already discussed it before, but we'll also see when we discuss integers under multiplication. अब क्योंकि ये हमारा इंटीजर बाय इंटीजर आकर रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं p by q, और ये इंटीजर, तो विच इज आल्सो इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो हम क्या बोलेंगे रैशनल नंबर्स आर आल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन. थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशंस के लिए लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स. सो लेट्स 4 by 7 plus 14 by 21. इसका आंसर क्या होगा? एलसीएम हमारा है 21, 7 3s are 21, तो 4 3s are 12 plus 14, which is equal to 26 upon 21. You can take n number of examples and verify that rational numbers are closed under addition. और इसका जो proof था वो that I have explained you over here. ठीक है? Okay. So now let's discuss about subtraction. So I won't take much time, and subtraction का we know under whole numbers. Is it closed or not? चलो let's discuss it एग्जाम्पल के साथ, ठीक है. सो अच्छा, एक चीज प्रूफ में मेरे को अच्छी लगती है कि अगर हमें किसी चीज को गलत प्रूफ करना है तो हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए जो उसको गलत प्रूफ कर सके. अगर हमें वो एक एग्जाम्पल भी मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो चीज गलत है. अगर हमें किसी चीज को सही प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ पूरा मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए होता है. ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, बट जस्ट टू गेट दिस आइडिया इनटू योर हेड्स, जस्ट रिमेंबर दैट अगर हमें किसी भी चीज को गलत प्रूफ करना है तो हमें सिर्फ एक एग्जांपल चाहिए. तो अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल ले -10 -5, सॉरी 5 -10, क्योंकि हम होल नंबर डिस्कस करें. 5 इज द होल नंबर, 10 इज द होल नंबर, एंड द ऑपरेशन दैट वी आर डूइंग इज सबट्रैक्शन. सो इसका आउटपुट क्या आया? -5. इज -5 a whole number? No. So is subtraction closed under for whole numbers? No. अब हम इंटीजर्स पे आता है. -5 -10 is equal to -15. 5 -10 is equal to -5. इधर हमने देखा कि 5 -10 हमें नेगेटिव तो दे रहा है, लेकिन इंटीजर्स में तो नेगेटिव अलाउड है. करेक्ट. सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन. इसका थोड़ा और इलैबोरेट प्रूफ अगर हमें चाहिए तो वी कैन डू लेट a and b be any integers. ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. a minus b will always give an integer to us. This is a more general form of it. ठीक है, or we can write that a minus b is equal to c. c is always an integer. And we can see this from the various addition also, from the previous classes also. अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स पे. चलो, अब हमने देखा कि रैशनल नंबर्स इंटीजर्स के लिए तो सबट्रैक्शन है, तो क्या रैशनल नंबर्स के लिए होगा? लेट्स थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड विदाउट टेकिंग एनी एग्जांपल. आप खुद सोचो कि अगर कोई प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए होल्ड करिए, क्या रैशनल नंबर्स के लिए जरूरी है होल्ड करे? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? If you have any thoughts on these, please leave it in the comment section, and I'll be happy to discuss it with you. So, चलो हम जनरल फॉर्म से शुरू करते हैं. P by Q minus A by B. ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? PB minus AQ upon QB. ठीक है, PB हमें पता है
क्या है, इंटीजर। ए की हमें पता है क्या है, इंटीजर। क्यू भी हमें पता है क्या है, इंटीजर। और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो क्या रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सबट्रैक्शन? यस। अब हम इसके थोड़े एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। 4/3 माइनस 3/4, इसका एक आंसर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 12, 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9, 7/12. Let's take another example. Hundred divided by 901 minus 50 divided by 1802. तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 1802. 901 into 2, तो यहाँ पे आया 200 minus 50. This is equal to 150 upon 1802. Make sense? So we can see that rational numbers are closed under subtraction. Now let's go for multiplication. Multiplication होता है क्या बेसिकली, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन। तो अगर मैं किसी चीज को ऐड कर रहा हूँ, मेरे को होल नंबर मिल रहा है, क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी होल नंबर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? एग्जांपल देख लेते हैं। 4 into 3 क्या होता है बेसिकली, 4 plus 4 plus 4, and we see that whole numbers are closed under addition, so this is always a whole number. So we can say similarly for integers by the same logic, and for the very same logic we can say that the rational numbers are also closed under multiplication. But for rational numbers, because this is something new to you guys, so I'm going to give some examples for the same. ठीक है, 14 sevens are 98, 23 twos are 46. Make sense? Or if you want, you can reduce it to the simplest form and then do it over there, but no issues. What we are trying to say is कि rational numbers close under multiplication, और जो हम एक एग्जांपल से चेक कर रहे हैं, जबकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि एडिशन है तो ये भी होगा वैसे, बट स्टिल sorry, stop going on that side. So let's take another example. Okay. तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है इस केस में भी और इस केस में भी दोनों में ही रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर. ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब आते हैं डिवीजन पे. इस डिवीजन होल नंबर्स का डिवीजन क्लोज होता है क्या? वी नो द आंसर. व्हाई? डिवीजन इज बेसिकली सबट्रैक्टिंग थिंग इनटू सब पार्ट. सबट्रैक्शन नहीं है. एग्जांपल देख लेते हैं हम. 3 डिवाइडेड बाय 2. आंसर, is it a whole number? No. Similarly for integers, same example हम ले सकते हैं. Now rational numbers में this is a bit tricky, so let's discuss it. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. चलो इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं. जनरल फॉर्म में डिस्कस करते हैं, उससे क्या है कि थोड़ा इजी रहता है. जनरल, अगर हम सब कुछ जनरल में डिस्कस करें तो हमने बोला कि P by Q डिवाइडेड बाय A by B. ठीक है, तो हम इसको
जब डिवीजन आता है तो हम उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं into b by a. So this becomes this. ठीक है, अब हमने पता है कि मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर्स. सो हेंस बिकॉज इसका जो आउटपुट आएगा, वी नो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, वी कैन से दैट दिस इज आल्सो क्लोज्ड. Agreed? Make sense? No. Actually, there's a catch over here. इधर हमने क्या करा, इधर हमने रेसिप्रोकल लिया है और हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए. तो अगर हमारा a जीरो है, a तो जीरो हो सकता है, क्यों? क्योंकि a हमारा न्यूमरेटर में. तो इनिशियली तो वी कैन से दैट 43 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज वन रैशनल नंबर, हमारा p by q है डिवाइडेड बाय 0. इसका आउटपुट क्या होगा? 0 by 1. आउटपुट तो इसका 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, हमने पहले भी देखा, बट हम डिफाइन तो कर सकते हैं, एक इनपुट तो दे सकते हैं विद दिस ऑपरेशन डिवीजन. सो इसलिए हम क्या कहते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन इफ प्रोवाइडेड, और मतलब कुछ भी लिख सकता है, प्रोवाइडेड a is not equal to 0, या फिर हम बोल सकते हैं नो. इन जनरल नो. एक कंडीशन है बस, a not equal to 0 हो, then this is true. Make sense? Okay. So ये हमने आज काफी कुछ सीखा है. So I will give you guys some time to soak it in, to go through it, to revise it, and we'll discuss more about it in the next video. Till then, please, if you have any queries, leave it in the comment section. अगर आपको कुछ discuss करना है, so please leave it in the comment section. I'll be happy to discuss it. And one more announcement I want to make is कि we have a Facebook page, a Twitter page, and an Instagram page where we upload new questions daily on that portal with questions which are very interesting to solve and which will help you learn a lot. So follow us on Twitter, on Instagram, on Facebook to get daily updates on the new questions that you want to solve to get your mind going. So yeah, follow us over there and subscribe over here to get new updates as well. Thank you.